Assalamu alaikum dear students. So here I am with the last unit of your book, that is talking about natural disasters. Now, you must have come across many natural disasters in your life. For example, very frequently we have earthquakes. Similarly, sometimes there are storms, thunderstorms, there are hailstorms. So all of us have experienced at least one natural disaster in our lives. Let us see what are natural disasters and what are some of the things that we are going to learn in this unit. Here, I have enlisted for you some natural disasters. There is avalanche, there is blizzard, there are droughts, hailstorms, landslides, thunderstorms, tornadoes, cyclones and wildfires. These are some of the very many natural disasters that happen in the world. You can see the definitions of these natural disasters in front of these titles. For example, in your life you must have enjoyed a hailstorm. A hailstorm is when there जिसको आप अपने उर्दू में ओलों का गिरना कहते हैं या यालाबारी कहते हैं. That is a hailstorm. So many times as children we have enjoyed a hailstorm, and it is always an unusual event for us. But then sometimes hailstorms can be really dangerous and they can damage the property or the crops or the assets of people. Now, there is some disaster related vocabulary that you need to learn. Let us see on the screen what is that vocabulary. Barometer. Barometer is an instrument that measures atmospheric pressure. Dust storm. Dust storm is a windstorm that lifts up clouds of dust or sand. Normally, people living in the deserts have experienced this. Erosion. Erosion is the process of wearing or grinding something down. Even the earth erodes. Gust. A strong current of air. Iceberg. Iceberg is a large frozen mass floating at sea. Seismic. Seismic is subject to or caused an earthquake or earth vibration. Whirlpool is a powerful circular current of water. A whirlpool can be very strong, sometimes even trapping ships. Heat wave. Heat wave is a period of unusually hot weather. So many times in hot countries, people they sometimes get ill because of becoming a victim to the heat wave. This is some of the disaster related vocabulary that you must have heard or that is normally used. Now, let us see what does this unit teach us. The first thing that the unit talks about is punctuation. Punctuation is a very important part of our writing as well as speaking. Now, while you are writing, there are many marks that show punctuation. You must have heard about punctuation marks like commas or quotation marks or colons or semicolons or question marks or exclamation marks. So, in writing, it is easy to show punctuation through these marks. On the other hand, when it comes to reading or when it comes to speaking, how is it that quotation marks help us? Quotation marks tell us where to pause. Quotation marks tell us to change our intonation in the way we say something to make it sound like a question. For example, if I say, John has bought a new car. Now, this seems like an information. But if I say John has bought a new car, it is when I am being surprised and I am trying to ask someone whether the information that I have received is true or not. So, intonation, basically intonation आवाज़ का वो उतार चढ़ाव है जिसके ज़रिए हम उसमें अपने जुमले में मुख्तलिफ़ किस्म के मानी पैदा करते हैं. तो कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स जो हैं वो हमारी स्पीकिंग में कैसे रिफ्लेक्ट होते हैं, हमारे पॉजेस के ज़रिए, हमारी इंटोनेशन के ज़रिए. फॉर एग्जाम्पल, लुक एट दिस सेंटेंस.
sit not, comma, stand. Now this sentence can also be written with sit, comma, not stand. Now even if you do not put commas or while you are speaking, you don't say sit, comma, you have to show it through your intonation. If I say sit not, stand, I want you to stand and not sit. But when I tell you sit, not stand, I want you to sit and do not stand. Now here, through my intonation and through the pauses, I change the meaning of the words of the same combination. Let us see what are some of the punctuation that we use in our everyday writing. Number one thing are the end marks. By end marks, I mean all those punctuation marks that are used mostly at the end of a sentence. I have here 3 end marks for you. Full stop, that is also called a period. Now this may be a new information for you that a full stop is also called a period. And then there are question marks and then there are exclamation marks. Now full stop is used at the end of a sentence, whether it is an affirmative sentence or a negative sentence. On the other hand, a question mark is used at the end of an interrogative sentence. किसी भी सवाल के सामने, सवालिया जुमले के सामने question mark लगाया जाता है. And then there is exclamation mark. Exclamation mark 2 जगहों पर इस्तेमाल होता है. It is used at the end of an interjection. If you remember, in one unit we had talked about parts of speech, and there we had talked about the part of speech interjection. And I had told you that interjections, when they are used in a sentence, mostly carry an exclamation mark. So when it is used after interjection, it is used like this: wow, this is an interjection. So when you write an interjection, wow, you put an exclamation mark at the end to show that this is meant to be an interjection. Then it is used at the end of an exclamatory sentence. For example, if you say, what a nice pen it is. Now this is showing my surprise. This has feelings and emotions in it. So you use, at the end of this exclamatory sentence, you will use an exclamation mark instead of a full stop. Now, a very commonly used punctuation mark is a comma. Commas are, you can say, mostly used punctuation marks, but then you should also know that they are mostly mistaken and mistakenly used punctuation marks. What are some of the uses of comma? Comma is used to separate 3 or more words, phrases or clauses in a series. Now this is an important use of comma that you might not have known earlier. जब भी आप 2 से ज़्यादा चीज़ों का जिक्र करते हैं किसी जुमले में, चाहे आप उनको and के साथ यूज़ करें या or के साथ यूज़ करें, आप and या or से पहले कॉमा ज़रूर लगाते हैं. आप उन्हें कॉमा से सेपरेट करते हैं. नीचे एक एग्जाम्पल दी गई है इसकी. He visited England, France and Italy. Now, since there are 3 countries they visit, चूँकि 3 मुल्क हैं जिनमें विजिट का जिक्र किया गया है, तो उन तीनों मुल्कों को अलग अलग करने के लिए एंड से पहले भी कॉमा लगाया गया है. अगर ये सिर्फ 2 मुल्क होते, ही विजिटेड इंग्लैंड एंड फ्रांस, तो इस जुमले में कोई कॉमा नहीं आना था. Secondly, the second use of comma is that it is used to show a pause after an introductory word and to set off names used in direct address. अगर आप किसी को डायरेक्टली एड्रेस कर रहे हैं, अगर आप किसी को उसका नाम लेकर बुला रहे हैं इन अ रिटन सेंटेंस, तो आप उसके नाम के फ़ौरन बाद कॉमा लगाएंगे और फिर अपना जुमला पूरा करेंगे. इसी तरह अगर आप जुमले के अंदर कोई इंट्रोडक्टरी वर्ड यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि येस या नो या कोई भी और इंट्रोडक्टरी वर्ड, तो आप उनके फ़ौरन बाद भी कॉमर्स लगाएंगे. येस, comma, that was one of the reasons for their power, full stop. Shella, comma, this is your book, full stop. Now you can see that yes in the first sentence has been used as an introductory word and it has a comma after it. Similarly, Shella is a name, एक direct address है, इसलिए इसके बाद भी comma लगाया गया है. तीसरा इस्तेमाल कॉमे का ये है कि जब भी आप किसी भी जुमले में किसी शहर का नाम इस्तेमाल करें और उसके साथ ही उस मुल्क का भी नाम इस्तेमाल करें जिस मुल्क का वो शहर है, तो आप शहर और मुल्क के नाम को सेपरेट करने के लिए बीच में कॉमा लगाते हैं. द एग्जाम्पल हैज़ बिन गिवन टू यू, इस्लामाबाद, कॉमा, पाकिस्तान.
Similarly, another use of comma is whenever you use a word to, T-O-O-2, at the end of a sentence, you put a comma before it. आप बाकी सेंटेंस से इस टू को कॉमा के जरिए अलग करते हैं. He is my friend, comma, to. Now, whenever you use to, but at the end of the sentence, it has a comma before it. लेकिन अगर to आखिरी लफ्ज़ नहीं है, बल्कि to बीच में आ रहा है और उसके बाद भी आप कुछ बात करेंगे, तो फिर उससे पहले या उसके बाद आप कॉमा नहीं लगाते. टू से पहले कॉमा उसी सूरत में लगाया जाता है जब वो लफ्ज़ जुमले के आखिर में इस्तेमाल किया जा रहा हो. कॉमा के और भी बहुत से यूजेस हैं, लेकिन ये कुछ वो मेन यूजेस आपके साथ डिस्कस किए जो आपकी एवरीडे राइटिंग का हिस्सा हैं. अब आ जाइए कोटेशन मार्क्स के ऊपर. कोटेशन मार्क्स वो मार्क्स हैं जो डायलॉग्स के ऊपर लगाए जाते हैं. आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी किसी किताब में कोई डायलॉग लिखा जाए जो किसी शख्स ने बोला है, तो उसके दोनों ऊपर, दोनों डायलॉग के शुरू में भी और डायलॉग के एंड में भी कोटेशन मार्क्स लगाए जाते हैं. इनको आसान लफ्ज़ों में इन्वर्टेड कॉमर्स भी कहा जाता है. इन्वर्टेड कॉमर्स या तो डायरेक्ट स्पीच के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये बताने के लिए कि ये अल्फाज किसी भी शख्स के अपने अल्फाज हैं, डायरेक्ट वर्ड्स हैं जो उसने इस्तेमाल किए हैं. इसी तरह इन्वर्टेड कॉमर्स को कुछ और जगहों पर भी इस्तेमाल किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, दे आर यूज्ड अराउंड द टाइटल ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी, एसे, पोएम, सॉन्ग, मैगजीन और न्यूज़पेपर आर्टिकल और बुक चैप्टर. याद रखिए कि अगर आप इनमें से किसी भी जॉनर का नाम अपनी राइटिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी आप कोई मजमून लिख रहे हैं जिसमें आप किसी पोएम का नाम लिख रहे हैं, या आप कोई मजमून लिख रहे हैं जिसमें आपने किसी ऐसे, किसी सॉन्ग, किसी शॉर्ट स्टोरी, किसी मैगजीन आर्टिकल, न्यूज़पेपर आर्टिकल या बुक चैप्टर का जिक्र किया है, तो आप उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में या कोटेशन मार्क्स में ही रखेंगे. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जो डायरेक्ट कोटेशंस हैं, यानी किसी के अल्फाज हैं, डायरेक्ट अल्फाज हैं, वो भी कोटेशन मार्क्स या इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर ही आते हैं. इसके साथ एक और यूज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो इटैलिक्स का है. इटैलिक्स का इस्तेमाल सिर्फ टाइपिंग के दौरान किया जा सकता है. अब जब टाइप करते हैं तो आपको कंप्यूटर ऑप्शंस देता है कि क्या आप किसी भी अल्फाज को जो आपने लिखे हैं इटैलिक्स में बदलना चाहेंगे कि नहीं. अगर आप किसी लिखे हुए, टाइप हुए अल्फाज को इटैलिक्स में बदलते हैं कंप्यूटर के ज़रिए, तो वो कुछ थोड़े से स्लांटिंग पोजीशन में या कुछ थोड़े से टेढ़े हो जाते हैं. उन टेढ़े अल्फाज को इटैलिक्स कहा जाता है. इटैलिक्स कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं? दे आर यूज फॉर द टाइटल ऑफ अ बुक, प्ले, फिल्म, टीवी सीरीज, मैगजीन, न्यूज़पेपर और वर्क ऑफ आर्ट. आप जब भी किसी किताब का नाम लिखते हैं, किसी प्ले का, किसी फिल्म का, टीवी सीरीज का, मैगजीन का, न्यूज़पेपर का या किसी भी वर्क ऑफ आर्ट का, तो आप अगर उनको टाइप कर रहे हैं तो आप उनको इटैलिक्स में ही लिखेंगे. आगे चलते हैं. एक बड़ा इम्पोर्टेंट पंक्चुएशन मार्क जिसे हम अपनी राइटिंग में अक्सर इस्तेमाल करते हैं वो है अपॉस्ट्रफी. अपॉस्ट्रफी वो मार्क है जो कॉमा से मिलता जुलता होता है, लेकिन वो लफ्ज़ के नीचे लगने की बजाय लफ्ज़ के ऊपर लगता है. अगर आपको याद हो तो हमने 2 यूनिट्स में कॉन्ट्रैक्शंस का जिक्र किया. कॉन्ट्रैक्शंस बेसिकली वो अल्फाज हैं जिनको आप शॉर्ट फॉर्म में इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं. याद रखें कि उनको शॉर्ट बनाने के लिए आप अपॉस्ट्रफी का इस्तेमाल करते हैं. आपको याद होगा कि हमने इट को इट्स बनाने के लिए एक छोटा सा कॉमा जो ऊपर था इट और एस के बीच में डाला. दैट कॉमा इज नॉट कॉल्ड अ कॉमा, इट इज कॉल्ड एन अपॉस्ट्रफी. अपॉस्ट्रफी के बहुत से इस्तेमाल हैं, लेकिन उनमें से एक ख़ास इस्तेमाल अपॉस्ट्रफी का ये है कि वो चीज़ों की पोजेशन के बारे में बताता है. वो चीज़ों का किसी से बिलोंग करने के बारे में बताता है. ये बताता है कि ये चीज़ें किसकी हैं. लेकिन याद रखिए कि अपॉस्ट्रफी का इस्तेमाल बिलोंगिंग के सेंस में ज़्यादातर लिविंग थिंग्स के साथ होता है. आप नॉन लिविंग थिंग्स के साथ अपॉस्ट्रफी का इस्तेमाल नहीं करते. आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि अपॉस्ट्रफी के इस्तेमाल में बताया गया है दैट दे आर यूज्ड टू फॉर्म अ पोजेसिव ऑफ अ सिंगुलर नाउन. अगर नाउन सिंगुलर हो, चाहे वो किसी का नाम हो या कॉमन नाउन हो, तो सिंगुलर नाउन के साथ जब पोजेशन शो करनी हो, बिलोंगिंग शो करनी हो, तो आप अपॉस्ट्रफी और एस का इजाफा करते हैं. आपके सामने मिसाल है
जेम्स अपॉस्ट्रफी एस। जेम्स एक नाम है एक शख्स का, उसको बिलोंगिंग में या पोजेशन में शो करने के लिए आपने उसके साथ अपॉस्ट्रफी एस का इजाफा कर दिया। इसी तरह मेन, चूंकि मेन एक, अच्छा अब यहां पर आपके लिए एक और बात को समझना जरूरी है कि सिंगुलर नाउन की केस में आपने सिंगुलर नाउन के साथ अपॉस्ट्रफी एस यूज किया, जैसा कि जेम्स के साथ जेम्स अपॉस्ट्रफी एस दैट इज जेम्स इज यूज किया। अगर नाउन प्लूरल हो जैसे कि मेन, बॉयज, तो अपॉस्ट्रफी का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा? याद रखिए वो अल्फाज जिनके प्लूरल बनते हुए एंड पे एस आता है, जैसे कि बॉयज एक प्लूरल है जिसमें आपने एस ऐड किया है बॉय के सामने, तो वो तमाम प्लूरल्स जो एस पर ख़त्म होते हैं उनमें आप अपॉस्ट्रफी एस नहीं लगाते, खाली अपॉस्ट्रफी लगाते हैं। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दैट द word boys has an apostrophe at the end of it, but I have not uses an extra s after that apostrophe. लेकिन जो plurals, जो भी noun इस तरह plural होते हैं कि उनके end पे s नहीं आता, जैसे कि man का plural है men, उस केस में आप खाली apostrophe नहीं लगाते बल्कि apostrophe के साथ s का इजाफा करते हैं। men's, boys. Now इसी तरह अपॉस्ट्रफी का एक इस्तेमाल जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया होता है कॉन्ट्रैक्शंस बनाने के लिए। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन 4 कॉन्ट्रैक्शंस दैट आई हैव रिटन, इट्स, आइल, वियर, इजंट। नाउ इन ऑल दीज 4 फॉर्म्स, 4 कॉन्ट्रैक्शंस, वी हैव यूज्ड अपॉस्ट्रफीज। दिस इज इंपॉर्टेंट that I have written at the end that apostrophes are not used in the possessive pronouns. जब pronouns अव्वल तो अपॉस्ट्रफी एस पोजेशन शो करने के लिए सिर्फ नाउन्स के साथ लगता है, प्रोनाउंस के साथ नहीं। लेकिन ये भी याद रखिए कि जो पोजेसिव प्रोनाउंस हैं जैसे कि माइन, इट्स, योर्स, हिज, हर्स, आवर्स, देयर्स, इन सब ऑलमोस्ट इन सब के एंड पर एस है और ये पोजेशन भी शो कर रहे हैं, लेकिन हमने अपॉस्ट्रफी के बगैर इनको इस्तेमाल किया है। एक बात याद रखिए, a commonly made mistake is that whenever we write an application, at the end of that application, when we write yours obediently or yours faithfully or yours sincerely, we are not putting an apostrophe s in yours, बल्कि वो yours में जो s है end पे वो yours का हिस्सा है, उसको apostrophe के जरिए आप नहीं लगाएंगे बल्कि word के साथ ही add कर देंगे। चलते हैं एक और punctuation की तरफ जो कि है राइटिंग नंबर्स। याद रखिए कि नंबर्स हमारी राइटिंग में अक्सर इस्तेमाल होते हैं। आप अपने घरों के एड्रेसेस लिखते हुए नंबर इस्तेमाल करते हैं, आप अपने फ़ोन नंबर्स या आईडी कार्ड्स के साथ नंबर्स लिखते हैं, आप बहुत सी और जगहों पर नंबर्स लिखते हैं, हम पेज नंबर्स डालते हैं अपने राइटिंग्स के ऊपर, और हमें बहुत सी जगह अपनी राइटिंग के दौरान लफ्ज़ों को लिखते हुए अक्सर नंबर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। आइए देखते हैं कि नंबर्स किस तरह इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले स्पेल आउट नंबर्स दैट यू कैन राइट इन 1 or 2 वर्ड्स। जो भी नंबर्स आप अपनी राइटिंग में लिखते हैं और जो एक लफ्ज़ है, जैसे कि 5, इफ यू आर राइटिंग देयर आर 5 chapters in my book, you will not use a numeral for 5, you will rather use it in a word, F-I-V-E 5. There are 5 chapters in my book. Always remember, if number is a single number, you do not use a numeral. Numeral उसकी mathematical form है और in words आप number को तब लिखते हैं जब आप उसको spell out करते हैं, spellings लिखते हैं. So, you spell out a number if it is single or if there are 2 words. अगर 2 words हों जैसे 25, तो फिर भी आप उनको इकट्ठा लिखते हैं और आप उनको न्यूमरल्स में नहीं लिखते, 2 और 5 नहीं लिखते, बल्कि आप 25 वर्ड्स में लिखते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि 25 को हमने हाइफनेट किया है। हाइफनेट करना क्या होता है? एक छोटी सी डैश जो 20 और 5 के बीच में लगी है, दैट इज कॉल्ड हाइफन। तो जो डबल नंबर्स हैं आप उनको हाइफनेट करते हैं। सिंगल नंबर्स और डबल नंबर्स, इनको आप हमेशा वर्ड्स में लिखते हैं अपनी राइटिंग के अंदर। आगे चलते हैं। You use numerals for numbers of more than 2 words.
कोई भी न्यूमरल्स जो 2 से ज़्यादा डिजिट्स वाले हों, हमने कहा जो 1 डिजिट है और जो 2 डिजिट्स हैं उनको आप वर्ड्स में लिखेंगे, लेकिन 2 से ज़्यादा डिजिट्स, 3 या 3 से ज़्यादा डिजिट्स को न्यूमरल्स में यानी नंबर्स में लिखा जाएगा. यू हैव एन एग्जाम्पल हियर, ही ड्रोव फॉर 392 miles. Similarly, very large numbers when they are written in a text, तो उनमें भी आप वेरी लार्ज नंबर्स जो होते हैं यानी जो बहुत बड़े नंबर्स होते हैं, हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में, मिलियंस में, उनको आप किस तरह लिखते हैं? आप वो नंबर लिखते हैं न्यूमरल्स में और उसके साथ उसकी यूनिट लिखते हैं. यू हैव एन एग्जाम्पल हियर, 25 million. देन देयर आर ऑर्डिनल नंबर्स. ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं 1, 2, 3 नहीं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड को ये वर्ड्स आप जब भी अपनी राइटिंग में इस्तेमाल करते हैं, किसी टेक्स्ट में, किसी ऐसे में, किसी स्टोरी में, किसी रिपोर्ट में, तो आप 1 डाल के ऊपर ST नहीं डालते, आप FIRST ही लिखते हैं. तो जैसा कि आपने देखा था कि हमने प्रोसेस राइटिंग के अंदर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड का वर्ड यूज किया था. सो दीज आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन वर्ड्स, नॉट इन न्यूमरल्स. अब आ जाइए कि टाइम, अगर आप कुछ ऐसा नोट लिख रहे हैं जिसमें वक्त का भी जिक्र आ गया है, तो आप उसको कैसे अपनी राइटिंग में शो करेंगे? अगर तो o'clock का टाइम है कोई, लाइक 6 o'clock, तो आप, और ये 1 डिजिट है चूंकि, तो आप इसको SIX ही लिखेंगे, 6 o'clock. लेकिन अगर आपने AM या PM में टाइम लिखना है तो फिर आप प्रॉपर न्यूमरल्स के साथ लिखेंगे, जैसा कि आपके सामने 9:15 लिखा गया है. इसके साथ ही आप P और M को लिखने का तरीका भी नोट करें. AM और PM इसी तरह लिखा जाता है राइटिंग में. Then there are numerals that are used for date, house and street numbers, page numbers, percentages. Now here they give you examples also. जो numerals date show करते हैं आप उनको numerals में ही लिखते हैं. Date को numbers में या numerals में लिखा जाता है. House number, apartment number को भी numerals में लिखा जाता है. Street number को भी numerals में लिखा जाता है. Page number भी numerals में लिखा जाता है और percentages भी. सामने आपको मिसाल दी गई है, June 23, 1832. दिस इज द डेट दैट दे हैव रिटन. तो डेट में उन्होंने ईयर को भी न्यूमरल्स में लिखा और डेट को भी न्यूमरल्स में लिखा, मंथ को वर्ड्स में लिखा. और आप देख लीजिए कि जब डेट और ईयर दोनों आ रहे हों तो बीच में कॉमा लगता है दोनों के, ताकि आप उन दोनों को अलग कर सकें. इसी तरह 11 स्ट्रीट में 11 न्यूमरल्स में है और परसेंटेज में उन्होंने 40 को तो परसेंट में लिखा, 40 को तो न्यूमरल्स में लिखा है और 7% का वर्ड लिख दिया है. तो इस तरह आप न्यूमरल्स को अपनी राइटिंग में इस्तेमाल करते हैं. Another thing that this unit will teach you is about news reports. In the unit, they will tell you, because this is a unit on natural disasters. So many times newspapers publish the news of natural disasters whenever they happen. So they have also talked about how to create a news report. आपको आपके यूनिट के अंदर ये सिखाया गया है कि न्यूज़ रिपोर्ट को किस तरह आपने डेवलप करना है या किस तरह आपने न्यूज़ रिपोर्ट बनानी है. यहाँ पर आपको एक और तरीका बताया गया है न्यूज़ रिपोर्ट क्रिएट करने का. 5 चीज़ें जो न्यूज़ रिपोर्ट में ज़रूर होनी चाहिए वो क्या हैं? सबसे पहले हेडलाइन. हेडलाइन क्या बताती है आपको? स्टोरी किस बारे में है, न्यूज़ किस बारे में है. हेडलाइन इज रिटन इन बोल्ड ऑन द टॉप ऑफ द न्यूज़, जिसको हर कोई पढ़ सके फौरन और उन्हें पता चल जाए कि खबर किस बारे में है. देन देयर इज अ बाय लाइन. बाय लाइन टॉक्स अबाउट द राइटर ऑफ द स्टोरी. I mean, who has made this report, who has created this report. Then there is the lead. Lead covers the most important facts. Lead में वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं जो most important facts हैं. उसमें कोई numbers भी हो सकते हैं, कोई facts and figures भी हो सकते हैं जो दिए गए हों. And then there is the body of the report. Body of the report is the detailed account of the event. उस वाक़े का पूरा जो आपने अकाउंट देना है, जो उस वाक़े को तहरीर करना है, that is actually the body of the news report. And then there is the ending of the news report. Ending sometimes brings the solution maybe. Ending maybe talks about some decision that has been taken in this regard. तो ending जो है वो आपको उस मसले का हल बताती है जिसके बारे में रिपोर्ट थी, या वो आपको ये बताती है कि कौन सी इक़दामात किए गए हैं इस सिलसिले में. So it kind of closes the whole report. आपके यूनिट के अंदर आपको न्यूज़ रिपोर्ट लिखने के स्टेप्स भी दिए गए हैं और एक्टिविटी भी.
Once you perform this activity, you will get to know how a news report is written and what are some of the important parts of a news report. You can even follow the parts of the news report that are given here, but it is always advisable to do your work according to your book. This was another way of doing the same. So, in case you join mass media or you join a newspaper, you can always write the news report in the fashion that is told you here. This was all for this unit. This unit, like the previous units, is very rich in activities and the content. You will learn a lot of new things in this unit. So far we have covered all the 9 units from the book. I hope these recordings will help you understand the content of the book better. Best of luck and thank you very much.